Good evening, everybody, and welcome to Vidyadaan, a webinar where we learn a platform which is made to make you learn from the experience of others and learn from the wisdom of others. Yes, today we have a lovely topic and a lovely guy sitting next here, Mr. Harsh Doshi. He's going to cover the skills of सेल्फ डेवलपमेंट यस सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास हाउ टू गिव योर 100% हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो सबको चाहिए होती है लेकिन इजी नहीं होता एंड हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए टुडे वी हैव मिस्टर हर्ष दोशी विद अस हर्ष दोशी इज अ लाइफ कोच parenting coach, a TEDx speaker. He's been a speaker at Model United Nations, NLP. He's NLP certified graphologist. He is also a celebrity manager and interviewed many celebrities, including Vidyadaan ji, Apar Shakti Khurana, Runal Thakur, and shared stage with many, including Shan, Parajakta Kohli, Arjun Bijlani, Chunky Pandey, and Padmini Kolhapuri ji's, just to name a few. Welcome, Harsh, on Vidyadaan platform. We really welcome you. Thank you so much for having me on board, and thank you so much for that lovely introduction. Great. So, the topic you have selected, it's really, really difficult for me. Self. Yeah. When you say talk about self-development techniques. Is it actually, I used to think this is an art which is not with everybody. So is it actually technical and it's not an art, or it's an art that can work technically together? And how does it work and how your journey have been so far? So I think it's no rocket science, to be very honest, because since I come from the Bollywood industry, I relate few things with it. So if you see this very wonderful show on Netflix called Sacred Games, they tell you Aham Brahmasmi. That is, Brahma is like a creator, right? So we are the creators, we are the master of our own lives. So now it is up to us, like how we want to mold it, it's just how we take it ahead. So there's no rocket science in self-development. It's all like, how hum is cheez ko kaise aage le ja sakte hain, because we are born with a purpose and we just have to find that purpose because we are the, creators of our own life. So there's no rocket science. It's just simple. Just be with your own self, and you are the solution to everything. That is what I believe. Sorry, I was on mute. No problem. So what I wanted to say that now I want to hand it over completely to you, because I'm also here to learn about self-development techniques from you. Sure. We all are in the process of learning. Yes. So yeah. First of all, very good evening to everyone watching us right now. And today's topic is like the topic you all would have heard about or come across every time. Self-development is important. Self-development is important. So I don't want to be like a stereotypical speaker who's going to take you through like, aap aise karo, aap waise karo. I'm going to make it very candid and very simple as much as I can, so that, we practice it in our day-to-day life more easily. Okay. So first, I would like to say, no matter where you are at this point of time in your life, you all are born to do wonders, and you all are an amazing soul. So first of all, just let that thing out, like, just detox yourself from that. आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे. Trust me, you all are born to do wonders, and you will definitely do wonders in life. And I can, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है, रिटन गारंटी, कि आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो. The only thing is we need to have faith in ourselves. So on that note, let's get started with today's thing. Okay, so how to have an optimistic approach. I mean, मैं किसी स्पीकर को डीमीन नहीं करना चाहूंगा, बट बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. But the question is, पॉजिटिव सोचे कैसे, right? Because जैसे हम कुछ पॉजिटिव सोचने जाते हैं, what happens is, our mind encounters us with 10 different negative thoughts. कि what if ये हो गया, what if ये होगा. So we are never able to, think positive.
So I just made a research by my own experiences. I'll also be sharing my experiences through personal examples, because अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो definitely कर सकते हो. So I'll tell you, having an optimistic approach. So first of all, for that you need to learn gratitude. I'll tell you why gratitude is important. अगर gratitude को मैं एक easy शब्द में डालूं तो that is being thankful. अगर आपने देखा होगा कि जब हमारा स्कूल में या फिर कॉलेज में जब लंच टाइम होता था, we used to sing thank you God for the world so sweet, thank you God for the food we eat, thank you God for the birds that sing, thank you God for everything, you know, which was a very basic thing where you know we were taught gratitude, we used to express our gratitude. But हमने उस चीज को ऐसे देखा ही नहीं. It's just a poem, हम लोग ने गा दिया. It's just a prayer, हम लोग ने गा दिया और खत्म कर दिया. हम तो बहुत बिजी थे कि आज डब्बे में क्या है वो जानने के लिए. We never saw that, you know, what is the real purpose behind it. So देखो, you know, being thankful is very important. I'll tell you how it will help in having an optimistic approach. You can be thankful for every damn thing in your life. So I'll relate it to the pandemic because you know हम सब इस चीज को relate कर पाएंगे. जब लॉकडाउन आ गया तो you know काफी सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कॉल पे बात होती थी, वीडियो कॉल्स पे बात होती थी. We used to play all that WhatsApp games and whatnot. तो सब बोलते थे यार ये कोरोना में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया. People used to crib about it, and I'm like, see, जो हो गया, there's no point, you know, crying on a spilled milk. It makes no sense. अब हो गया, so let's have an optimistic approach to it. So कोई मुझे पूछता है कि हर्ष कैसा जा रहा है लॉकडाउन, I'm like amazing. You know, I had a very simple answer to it. And people are like, are you insane? Like ये कैसा जवाब होगा कि आपका लॉकडाउन अमेजिंग जा रहा है. मैंने बोला यार देखो मेरे पास मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए इतना अमेजिंग टाइम मिला है जो मुझे कभी मिलता नहीं था. First of all, I have a wonderful time to spend with my family. I have 4 time का खाना and a house to stay. What else do I need in life? You know, we can be thankful for every damn thing. So we have to change our vision. You know, we have to change our perspective to look at things. So that is going to flip for us. So once you start doing that, and it can be anything, you know, आज मैंने एक ही बार रिक्शा बोला और रिक्शा वाले ने मुझे हाँ बोल दिया, because staying in Mumbai or anywhere in India and dealing with rickshaw walas is like the toughest thing you can ever do in your life. तो यू नो अगर रिक्शा वाले ने बोला कि हाँ हाँ मैडम, हाँ भैया चलो हम चलेंगे आपके साथ यहाँ पे, बी थैंकफुल कि आपको तो यार वन गो में रिक्शा मिल गया, वरना तो हमारा दिन की शुरुआत ही शुरू होती है रिजेक्शन से, राइट. तो यू नो वी कैन बी हैप्पी कि यू नो रिक्शा वाले ने हाँ बोल दिया, आज ट्रैफिक नहीं मिला, आज पार्किंग तुरंत मिल गई, यू नो पार्किंग में मेरी गाड़ी घूम नहीं गई, मुझे मिल गई. मतलब यू कैन बी थैंकफुल फॉर एवरी डैम थिंग इन योर लाइफ. मे बी योर you know mom cooked some favorite dish of yours, be thankful for that. You don't need any reason to be thankful. So I'll tell you ये क्या होगा once you start being thankful for every small things in your life. जब आपके लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे या फिर you know there is some challenge, you'll be like okay ये शायद कुछ अच्छे रीजन से आया होगा. I'm thankful to God कि you know ये प्रॉब्लम्स आए मुझे, so maybe I'll learn something out of it, or maybe I'll you know make way out of it. So fun story, I had dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, and ADHD. That is attention deficiency with hyperactivity disorder. Is it way too much? Well, back then I was way too much. So I'll tell you one simple thing. So जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थे, so I used to crib about it. यार मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, I'm a weak student, I'm a weak student, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. So people who did not get it what these problems are, अगर हम सबने तारे जमीन पर तो मूवी देखी ही होगी, उसमें जो उस बच्चे को प्रॉब्लम है वो सेम प्रॉब्लम मुझे थी. एंड यू नो आई वाज ट्रीटेड एज अ अनटचेबल चाइल्ड इन माय क्लासरूम जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट दैट स्मार्ट गाय. सो उसकी वजह से यू नो आई यूज्ड टू जस्ट क्रिप अबाउट माय सेल्फ, यू नो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई डू आई हैव दिस लाइफ, यू नो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय एग्जिस्टेंस. बट देन नाउ आई एम सो थैंकफुल कि भगवान ने मुझे वो सारे प्रॉब्लम्स दिए सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट एंड आई कैन हेल्प अदर्स आउट ऑफ इट. सो देयर इज ऑलवेज अ बिगर रीजन बिहाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ. यू नो क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो इसलिए भगवान ने आपको वो प्रॉब्लम दिया है. यू नो देयर हैज टू बी अ रीजन सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट एंड हेल्प सो मेनी पीपल. सो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको उस चीज को कैसे देखना है. तो आप बोलोगे कि सर फिर हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें, बिकॉज हम इतने कंप्लेन्स करते हैं लाइफ में कि थैंक यू बोलना इज द टफेस्ट थिंग वी कैन एवर डू इन टूडेज जनरेशन, बिकॉज हमें कंप्लेन करना बहुत इजीली दिख जाता है और व्हेन इट कम्स ऑन बीइंग ग्रेटफुल ये हो ही नहीं पाता है. सो मैं आपको किसी ऐसे प्रोसेस में नहीं डालना चाहता हूँ कि यू नो मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, आप ये लिखिए वो लिखिए, नो, बिकॉज मुझे पता है आप 2 दिन लिखोगे और फिर छोड़ दोगे. तो मैं आपको ऐसे कोई प्रोसेस में डालना ही नहीं चाहूंगा कि यू नो उसमें कंटिन्यूटी टूट जाए. सो आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. बिफोर गोइंग टू बेड, just say I'm thankful for everything.
You know, just it will take you 2 seconds of your life saying, you know, I'm thankful for everything. That's it. And after you wake up, all you have to say is, thank you for this wonderful life. You know, there are like 15,000 people who die every minute. And we are grateful that we have a life. What else do you need? We have all our organs which are working. We have our wonderful life. So I don't think so we need anything else apart from that. So this will take you in the process of once you start being thankful, तो आप पॉजिटिव आपको आप सोचने लगोगे, यू नो, इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं, चलो ये तो यू नो इसमें कुछ अच्छा ही होगा. यू विल स्टार्ट सीइंग गुड इन एवरी बैड थिंग एज वेल. सो यू नो दैट इज आई थिंक की. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि पॉजिटिव सोचो, बिकॉज जब तक आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ऑप्टिमिस्टिक सोचने तक पहुंच ही नहीं पाओगे. So, you know, people, if you guys are listening to this, start practicing gratitude. I think जब आपने gratitude practice करना start कर दिया, I think for me gratitude is like a golden book. आपकी life के 99% problems तो वहीं पे solve हो जाते हैं. To be very honest, because it has been with me, तो definitely सबके लिए यही हो सकता है. That is what I think, and I think you should give it a try. Moving on to how to think optimistic में और दो तीन चीजें कि बहुत बार ये होता है कि जैसे हम पॉजिटिव सोचने जाते हैं वैसे हमें 4 नेगेटिव थॉट्स आते हैं. इट्स ओके बिकॉज दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट. और इसमें भी आपको कैसे सोचना है, आई टेल यू, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स वेरी फनी. यू नो, अगर आपको आई टेल दिस एग्जांपल व्हिच विल गो विद एवरीवन. वी हैव कोरोना गोइंग ऑन राइट नाउ. तो अगर आप ऐसे बोलोगे मुझे कोरोना नहीं चाहिए, मुझे कोरोना नहीं चाहिए, मुझे कोरोना नहीं चाहिए, सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू सी कि आप क्या बोल रहे हो. यू नो, it will grab the words like corona. So you know you will be, you know, आपके आसपास लोगों को कोविड हो रहा होगा, फिर you will think कि मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड हो गया, because what are you reminding your head? कोविड 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 कोविड, ये आप मैसेज डाल रहे हो आपके माइंड में. उससे अच्छा आप ऐसे डालो, me and my family are totally safe and healthy, me and my family are totally safe and healthy. because बहुत बार हम पॉजिटिव जो सोचते हैं ना उसमें भी नेगेटिव वर्ड्स ही होते हैं. आप जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो उस पे फोकस करो, और जिस चीज को आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते उस पर फोकस ही क्यों करना है. So it's very simple. There's a very thin line between it. मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए and मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं और मेरा फैमिली एकदम हेल्दी है. So now it is up to you कि आप उस चीज को कैसे देखते हो. Because law of attraction क्या सुन रहा है? कोविड कोविड कोविड, तो आप कोविड को ही अट्रैक्ट करोगे. So anything you do, attract the positive side of it. You know, think अगर आप बीमार हो गए हो, आपको डायबिटीज आ गया, तो आप ऐसे बोलोगे, यू नो, मैं सारी मिठाइयाँ अभी खा सकता हूँ, मेरा डायबिटीज इतना. सो डोंट से डायबिटीज कहाँ पे भी मेंशन मत करो. You know, मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है, मेरा डायबिटीज कंट्रोल में. I don't do that. You know, I'm so fit and fine that I can eat every sweet. I'm so fit and fine that I can eat every sweet. You know, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को उस वे में देते रहो. So ये धीरे 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 once you start doing it, once you start getting in this process, आप डेफिनेटली कोई भी चीजों को बहुत पॉजिटिव वे में देखोगे. यू नो, हम हमेशा बोलते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ना आए. बट ये बोल के आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? आप डेफिनेटली प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट कर रहे हो. यू नो, एंड मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे प्रे करो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए. दैट विल मेक यू अ बिगर ह्यूमन बीइंग, दैट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू आर टुडे. सो आई थिंक कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं, ट्रस्ट मी, यू हैव द मोस्ट फैंटास्टिक लाइफ. बिकॉज अगर आपकी जिंदगी में रोज, अगर मैं आपको रोज मिठाई दूंगा ना, 4 दिन के बाद आप बोलोगे यार ये क्या है, राइट? तो तीखा, यू नो, फिर यू नो स्पाइसी, खट्टा, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब सब स्वाद का मिक्सचर मिलता है ना तभी मजा आता है. यू नो, पानी पूरी अगर आप तीखी खाओगे तो कंटाल जाओगे, मीठी खाओगे तो कंटाल जाओगे, बट इट विल बी अ मिक्सचर तो आपको मजा आएगा. सो इज लाइफ. यू नो, अप्स एंड डाउन्स होने ही चाहिए. अगर रोलर कोस्टर में मैं आपको बिठा दूं और वो एक रोड की तरह चल रहा है तो इट मेक्स नो सेंस. इट नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, जहां से हम ऊपर से नीचे आए, ये वो हो, कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. सो इज लाइफ, राइट? लाइफ कितनी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस से भरी होनी चाहिए. सो या, दैट इज हाउ यू विल गो एंड यू नो थिंक ऑप्टिमिस्टिक. सो आई होप आई एम क्लियर. ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स सो दैट यू नो आई वुड लव टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन इट. Moving on, how to be self-sufficient and self-motivated. इसके लिए मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि हम सब आज नहीं तो कल मरने वाले हैं. एंड आई थिंक यू डोंट नीड एनी अदर मोटिवेशन अपार्ट फ्रॉम दैट. आई टेल यू, अगर आपके लाइफ में कोई भी इंसान है जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाला है,
that is you, that is your own self, you know. आपके being very practical, आपके parents भी after a point of time, you know, they are not going to be in a part of this world. ना आपके kids, ना आपके wife, okay? तो just, और ना आपका husband for that matter, कोई भी permanent नहीं रहने वाला है आपके life में forever. The only person whom you are going to stay till the last breath is your own self. तो यू नो, हम काफी बार ये मिस्टेक करते हैं कि अगर सामने वाला, अगर मैं ऐसा करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं BMW लाऊंगा, मेरे घर वाले खुश होंगे, उसके बाद मैं खुश होऊंगा. अगर मैं मेरी हैप्पीनेस का डिपेंडेंसी, पूरा कंट्रोल अगर मैं लोगों के हाथ में दे दूंगा, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, यू नो. डेफिनेटली उसमें लोगों को हेल्प करना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ या फिर बहुत सेल्फिश बन जाओ, बट आपकी जो खुशी है वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. कि अगर मैं 90% मार्क्स ला रहा हूँ तो खुद के लिए लाओ. डोंट ब्रिंग इट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स कि यू नो 90% लाऊंगा, पेरेंट्स खुश होंगे, उसके बाद मैं खुश होऊंगा. तो इसमें क्या होगा ना, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, यू नो. तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस. तो आप खुद से ही खुश रहना सीख जाओगे. अगर हम बोलते हैं ना, अगर अगर मैं वापस बोलूंगा कि मैं बॉलीवुड से आता हूं, तो मैं बॉलीवुड के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लूंगा. जब वी मेट इज अ वंडरफुल फिल्म, और आई थिंक दैट फिल्म हैज बीन लाइक अ गॉड टू मी. इट हैज रियली गिवन मी अ सेकंड लाइफ. खुद को एक्सेप्ट करना उसने बहुत अच्छे से दिखाया. मैं अपना फेवरेट हूँ, व्हाई नॉट. यू नो, हम बाहर प्यार ढूंढते बैठ जाते हैं. वी स्टार्ट लविंग अदर्स बट वी डोंट लव आवर ओन सेल्फ. और यू नो, सब बड़े बुजुर्ग कह के ना, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपसे प्यार करे, तो पहले खुद से तो प्यार करो, राइट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. इट्स वेरी सिंपल. हम सबने सुना है, बट हम अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ में. वी नेवर डू दैट. यू नो, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. लाइक व्हाई कांट यू बी हैप्पी विद योर ओन सेल्फ? के यू नो, मैं तो दिन में 10,000 बार खुद को किस करता हूँ. लाइक मैं अपना फेवरेट हूँ, यू नो. बी योर ओन फेवरेट. किसी और को क्यों अपना फेवरेट बनाना है? अगर आप खुद के फेवरेट बनोगे, तो यू क्रिएट दैट ऑरा, यू क्रिएट दैट वाइब, दैट यू नो यू आर सेल्फ सफिशिएंट. और जिस दिन आप खुद से खुश रहना सीख गए, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती है. बिकॉज आप अच्छा करो, आप बुरा करो, लोग बोलने ही वाले हैं, यू नो. सो व्हाई गिव कंट्रोल इन पीपल्स हैंड? बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, यू नो. और खुद को प्यार करना कुछ बुरी बात नहीं है. दैट इज हाउ यू लव योर ओन सेल्फ. आई मीन, मुझे तो बहुत ये लगता है कि मुझे लोगों को ये बताना पड़ता है कि खुद से प्यार करो. आई थिंक दैट इज द फनीएस्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, यू नो. आई हैव टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर. मेरा रीजन बहुत सिंपल है कि मैं नहीं चाहता कि मोटिवेशनल स्पीकर्स और बने दुनिया में. मैं खुद नहीं चाहता. मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा ये मोटिवेशन वाला बिजनेस बंद होना चाहिए. पीपल शुड बी सो सेल्फ सफिशिएंट, यू नो, कि उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत ही ना पड़े, यू नो. बिकॉज सी, एज आई टोल्ड यू, आर द डिजाइनर्स ऑफ योर ओन लाइफ. अगर आप एक लाइफ के साथ बॉर्न होते हो ना, तो ये आपके ऊपर है कि आपको खुद को कैसे उसको मोल्ड करना है, राइट? तो आप यू बी लाइक अ वाटर, यू नो. आप पानी की तरह रहो. आप मोल्ड करो खुद को, यू नो, एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर एवरीथिंग यू हैव टू कम अक्रॉस. तो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन, अगर मुझे अगर सिंपल है, अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं आपको एक बार मोटिवेट करता हूं, और अगर आपको फिर से मेरे पास आना पड़ा, दैट मीन्स आई हैव मिजरेबली फेल्ड इन माय वर्क. आई वांट पीपल टू बी सो सेल्फ मोटिवेटेड कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, दे आर लाइक, नहीं नहीं, वील मेक अ वे आउट. बट दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ. हम दुनिया पे भरोसा कर लेते, तो हम खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. खुद से प्यार करना सीखो, यू नो. मिरर में जाओ, खुद को किस करो, वेक अप एवरी मॉर्निंग, बी लाइक, हे, दैट्स एन अमेजिंग पर्सन whom I see in the mirror. यू नो, व्हाई नॉट? तुम दूसरों को तारीफ कर सकते हो, खुद की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? हम बिना वजह दुखी रह सकते हैं, बट बिना वजह खुश नहीं रह सकते. और यू नो, आई टेल यू वेरी फनी स्टोरी. आप जिस दिन आप खुद के साथ खुश रहना सीख लोगे ना, आप हमेशा एकदम ओवर एंथुजियास्टिक, एकदम ओवर हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे. और दुनिया बोलेगी, और दुनिया को ना लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, एंड दैट इज अ फैक्ट, ओके. जिस दिन से आप खुश रहना स्टार्ट कर लोगे, उस दिन से लोग बोलेंगे कि ही हैज लॉस्ट इट, ये पागल हो गया. अगर लोग ने ऐसे बोला आप पागल हो गए हो, तो ट्रस्ट मी, आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो. बिकॉज आप दुनिया से उल्टा कर रहे हो ना. दैट मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग. So, you know, go ahead with it. Love your own self. I don't think so. I have to tell you this, that there is a reason to love your own self. You should have no reasons to love your own self. मेरी बातों को रीजन ही नहीं चाहिए. हम हैं, हम खुद से प्यार करते हैं, बात खत्म हो गई. Wonderful. And that shows how much you love yourself. And that shows
Yeah, मैं तो बोलता हूँ मैं अपना फेवरेट हूँ. Be Ah, Geet from Jab We Met. She has taught something wonderful to us. yes, very, very nice and a very actually motivational movie, I must say. Yeah, I mean, that movie is not just a movie. If you read between the lines, it is like a life lesson. No institute, no school, no college is going to teach you what that film has taught us throughout. You know, where she says, उसमें और एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जब वो घर से भागती होती है. बोलती कल को मैं इनको ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ. मेरी लाइफ जो भी होगी वो मेरे वजह से होगी. So that shows the self dependency what she has. You know that I am responsible for every act I do. तो ये हम इंसानों को हमेशा माइंड में रखना चाहिए. अगर हम गलत कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट व्हाट वी डू. And you must take responsibility and responsibility लेने के साथ, because I've seen बहुत लोग बोलते हैं my parents could not give me this, or my company could not give me this or that, but what are you giving to yourself matters the most. Yeah, I mean, I'll take my life example here. I could have always cribbed about saying that, मुझे dyslexia है. My school termed me that he's a failure and he'll never make through his weaknesses. अगर मैं वो पकड़ के बैठ जाता कि हर्ष जोशी तुम कुछ नहीं कर सकते, you're born for nothing, I think I won't be talking here today. और मैं वो शायद वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो मैं अभी कर रहा हूँ, like being a TEDx speaker, handling celebrities, interacting with celebrities. I had faith in myself. So how did it come from? I never had, मैंने लोगों की बातों को affect नहीं करने दिया खुद को. I'm like, it's okay. At end of the day, I'm a human being. I have to stay with myself. I don't have to get married to every next person I meet. So it's okay. I love myself, and that is important. And trust me, the day I started accepting myself, the day I started loving myself, things flipped for me. Things literally flipped for me. So, Wonderful. if I can, with so many challenges in my life, you guys are just normal out there. You guys can do wonders. And everyone is born to do wonders for that matter. Lovely. Over to you. So moving on to, many people will say how to improve our own selves. First thing, improve खुद को कभी मत करना. Your imperfections are the best perfections what you have been gifted by God. You know, अगेन आई से मैं बहुत बॉलीवुड बफ हूँ. मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लगाव है मेरा, और मैं कोई भी फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता. मैं हर एक फिल्म देखता हूँ जहाँ से मैं कुछ लाइफ लर्निंग ले सकूं. और एक बहुत बढ़िया सी मूवी है विद्या बालन और इमरान हाशमी जी की, जिसमें वो लोग एक दुबई के गार्डन में जाते हैं, विच इज मिराकल गार्डन. और वो बोलती है, एंड यू नो इमरान हाशमी से कि इस गार्डन में कुछ तो मिसिंग है जो कंप्लीट नहीं लग रहा है. तो विद्या बालन गिव्स अ वेरी वंडरफुल आंसर टू इट. यू नो द ओनली मिस्टेक विद दिस प्लेस इज इट्स टोटली परफेक्ट. ये इतना परफेक्ट है कि इसलिए कमी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सूखे पत्ते नहीं है, यहाँ पे मुरझाए पत्ते नहीं है, जो है सब एवरीथिंग इज ब्लूमिंग. यू नो तो एक चीज कंप्लीट कब होती है, जब उसमें थोड़ी चांद पे भी धब्बे है ना, तो कोई भी चीज कब कंप्लीट होती है, जब उसमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन हो, तभी जाके वो चीज कंप्लीट होती है. तो विद्या बालन बहुत अच्छा आंसर देती है कि क्योंकि इसमें सब कुछ परफेक्ट है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है. इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इम्परफेक्शन, देन इट विल लुक नेचुरल. और वो इतना, एंड दैट आंसर जस्ट हिट माय माइंड, एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, ये इतना ब्यूटीफुली उन्होंने उस चीज को समझा दिया है दैट हम ऐसी चीजों को देखते ही नहीं है. हम बस बोलते क्योंकि वो परफेक्ट है तो मैं भी उसके साथ परफेक्ट होना चाहता हूँ. वो आप नहीं जानते कि कितनी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो परफेक्ट नहीं है, जहाँ पे आप परफेक्ट हो. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर ओन सेल्फ, तब जाके आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे. एंड डेफिनेटली यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. अगर आप दूसरों के लिए खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप वहीं पे उस चीज को छोड़ देना, करना ही मत. डोंट टेक इट वन स्टेप अहेड. If you want to improve for your own self, then do it. Never do it for others. Seems like his screen got freezed. Internet. अभी ये लॉकडाउन में एक चीज तो इतनी अच्छी हुई कि हम लोग सब वाया इंटरनेट इतने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सब मिल पाते हैं. Online discussions, online meetings, which is all the more convenient than traveling all the way.
बट कभी कभी जब ये बीच में इंटरनेट का इशू किसी स्पीकर की साइड हो जाता है, देन व्हाट वी कैन डू इज जस्ट वेट वेट एंड वेट. बट यस, ही इज सो मोटिवेटेड. बहुत बहुत ही इज वंडरफुल गाय. आई थिंक ही इज जॉइनिंग बैक. Yeah, now am I audible? Yes, what I was saying, Yeah. this internet, this during this last 6 months, we have faced that it's been wonderful that now this distant socializing is happening. We are talking on internet, but at the time of a very specific discussion, जिसको आप इंतजार कर रहे थे, उसी टाइम पे इंटरनेट फ्लक्चुएट कर जाता है. Yeah, glitches are meant to happen and that is totally okay. And अच्छा है ना, the best part is अगर जब ऐसे glitch हो जाते हैं ना, तो जो लोग ऐसे अटक गए होते हैं, सो गए होते हैं, वो लोग जाग जाते हैं, क्या हो गया, why things have stopped, so that we can make sure they are listening to the main element of the whole thing. And also when your picture gets freeze like this, and everybody like, ये क्या हुआ? There are some चलो, glitches. over to you. See, but then if I think oh shit कि ये कैसा लगा होगा यार, मैं तो ऐसे मुंह खुले अटक गया ये वो, तो you know मैं शायद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं पे ड्रॉप हो जाता. But it's okay, that's part and parcel of life. तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हमेशा, राइट? See, that is what we were talking about. Imperfection is best. चांद में भी धब्बे है, तभी वो इतना खूबसूरत दिखता है. So be imperfect, and that is what I was talking about. कि you know खुद को दूसरों के लिए कभी improve मत करना, खुद के लिए हमेशा improve करना. But yeah, and I was saying it depends on person to person. अगर आपको खुद को improve करना है for others, तो वो depends on the motivation what you have. मेरा motivation clear था कि अगर मुझे इतने सारे challenges है, तो बाहर दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये चाहिए रहेगा. So if you're doing, and I think I'll tell you one simple thing. अगर आज आपके सामने वाले बिल्डिंग में आग लगी है, आप 50th फ्लोर पे, वो बिल्डिंग के 50th फ्लोर पे आग लगी है, और मैं बोलूंगा आपको कि आप इस रस्सी पे से चल के जाइए और वहां के लोगों को बचाइए. शायद आप आपका पैर उस रस्सी पे रखोगे ही नहीं, या आप बोलोगे आर यू इनसेन, अगर वो बचाते बचाते मैं गिर जाऊंगा तो मैं क्या करूं. बट जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली आपके पेरेंट्स उस घर में फंस गए हैं जिस घर में आग लगी है, और आप दूसरे साइड पे, और आपको उस रस्सी पे चल के जाना है, या फिर आपका बच्चा फंस गया है, आप कुछ भी नहीं सोचोगे समझोगे और आप जाओगे, राइट? बिकॉज यू हैव अ बिगर मोटिवेशन टू रीच देयर. तो बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, सो मेक श्योर यू आर हेल्पिंग अदर्स. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हेल्प करते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू बिकम अ टेडेक्स स्पीकर. अगर मुझे खुद के लिए टेडेक्स स्पीकर बनना होता तो शायद मैं और 10-15 साल तक बन नहीं पाता. बट आई हैड अ वेरी क्लियर विजन टू इट कि मुझे क्यों बनना है, क्योंकि मुझे लोगों को हेल्प करना है. आई हैड दैट इंटेंशन. और जब आप लोगों के लिए भला चाहते हो ना, तो यूनिवर्स विल ऑलवेज पुश यू टुवर्ड्स योर फाइनल गोल्स. ऐसे so always think, there should be a strong reason to it. In fact, I am an regular trekker. मैं हर 3-6 महीने में I go for snow treks and everything, and my ultimate goal is to climb Mount Everest. But जब and there are times कि when I go totally blank कि oh my god ये मुझसे नहीं हो पा रहा, because हम रात के 2-3 बजे -14 degrees में हम we are just hiking, and there is a time you feel like you have to give up कि अब नहीं होगा मुझसे. At that time I make myself like मैं कितना खुश होऊंगा जब मैं उस टॉप पे पहुंच जाऊंगा. व्हेन आई गो बैक होम, मैं मेरे पेरेंट्स को बोलूंगा कि ओ माय गॉड आई डिड इट, सो दे विल बी सो हैप्पी. तो आई अटैच सम सॉर्ट ऑफ हायर मोटिवेशन टू इट व्हिच विल मोटिवेट मी टू गो अप. एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो, इट हैपेंस विद मी, और ये सबके साथ होता है. जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि ओ माय गॉड मेरे पेरेंट्स कितने हैप्पी होंगे, मेरे पैर आपो आप भागने लगते हैं. आई डोंट नो ये कैसे होता है, इतनी थकान में भी मैं दौड़ लेता हूँ. तो इट्स वेरी सिंपल. इफ यू हैव अ पर्पस, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन, तो आपका पर्पस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो दैट इज समथिंग यू कैन डू. बट या मोर ओवर इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर योर ओन सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स. बिकॉज दुनिया आप अच्छे हो बुरे हो बोलेगी, उनको मिस्टेक्स दिखने ही वाली है आप में. मिस्टेक्स हमेशा दिखेगी, एंड कोई परफेक्ट नहीं होता. सो इम्प्रूव योर सेल्फ ओनली फॉर योर ओन सेल्फ. मूविंग ऑन. या Wonderful. Improve yourself for yourself. या Seriously, yes, we all do things for ourselves. And if we are polishing ourselves, then that's the best thing we are doing to ourselves. True. Yeah. And even I don't know what age group of people are watching this, but if parents are putting it across to all the parents who are watching us right now, I would just want to say कि अगर आप आपके बच्चे को बोलते हो ना कि तेरी ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है,
आप प्लीज आपको आपके बच्चे की मिस्टेक्स मत दिखाइए. यू हैव टू पुट इट अक्रॉस इन सच अ वे दैट ही विल फाइंड एक्सेप्टेंस. बिकॉज आई नो एज अ पेरेंट्स आप चाहोगे कि आपका बच्चा ये सीखे या फिर वो उसकी मिस्टेक्स में से सीखे. बट अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको डायरेक्टली डांट दूं कि आपको तो ये करना आता नहीं है, आप में ये फ्लॉ है, आप में ये फ्लॉ है, तो आप बोलोगे कि हु द हेल आर यू टू टेल मी ये मेरा फ्लॉ है, ये है. यू वोंट गिव एक्सेप्टेंस टू इट. तो मैं तो चाहूंगा कि आप बैठो, आप आपके बच्चों को बोलो कि अगर उसने ना 10 चीजें गलत की हो ना, फिर भी उसकी एक अच्छी चीज के पहले बारे में आप पहले डिस्क्राइब करो. यार तूने तो ये बहुत अच्छा किया, यार तूने तो ये बहुत अच्छा किया. एंड उसके बाद उसकी धीरे धीरे 10 गलतियां बताओ. तो वो आपको एक वेल विशर समझेगा. और वो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत रेबेलियस हो जाते हैं. दे आर नॉट रेडी टू लिसन, दे आर जस्ट आर्ग्यूइंग. तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो डायरेक्टली हमारे जो थॉट्स है उन पे थोप रहे हैं, राइट? हम भी तो वही गलती करते हैं. सो पुट इट अक्रॉस इन सच अ वे दैट ही फाइंड्स एक्सेप्टेंस टू इट. आपने बेटा ये 10 चीजें तो बहुत अच्छी की, तो ये 2 चीजों भी आप इम्प्रूव कर लोगे तो सब बेस्ट हो जाएगा. तो ही ऑल्सो फाइंड एक्सेप्टेंस, कह रहे हैं ये मेरा सच्ची जेन्युइनली अच्छा चाह रहे हैं. बिकॉज वो बच्चा है. आप समझते हो कि आप उनके भले के लिए बोल रहे हो, बट ये बच्चे नहीं समझ पाते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी पुट इट अक्रॉस इन सच अ वे. सो टू ऑल द पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इम्प्रूव हो, तो पहले हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे उनके लिए. मेक देम अंडरस्टैंड दैट इट इज फॉर देयर ओन बेनिफिट. और ये हमें ऐसे वर्बली नहीं समझाना, ये हमारे एक्शंस थ्रू ही होगा. सो टेकिंग एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, हाउ टू गिव 10,000% टू एवरीथिंग यू डू. सो ये तो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सारी चीजें ना बीच में से छोड़ देते हैं. आई अगेन टेक रिक्शा वाला एग्जांपल. जैसे मैंने बोला कि हमारे हमारे दिन की शुरुआत ही चालू होती है बहुत अमेजिंग रिजेक्शन से. मैं तो बोलता हूँ यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल द रिक्शा वाला भैया कि वो लोग ने इतना आपको मना कर दिया कि लाइफ में कोई लोग आपको कोई बिजनेस डील भी नहीं मिलेगी ना, आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा मिल जाएगा. दे मेक यू सो यूज्ड टू गेटिंग रिजेक्शंस इन लाइफ. सो यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल रिक्शा वाला भैया. सो आई टेल यू, जब एक या दो या तीन या चार रिक्शा वाले आपको ना बोल देते, क्या आप आपके बॉस को कॉल करके ऐसे बोलते हो कि 4 रिक्शा वालों ने मुझे ना बोल दिया तो मैं नहीं आऊंगा? you know so same when it comes on your dreams, when it comes on your career, when it comes on your goal, when it comes on your success, आप क्यों उस चीज को वहीं पे बीच में छोड़ देते हो? just because दो लोग ने आपको ना बोल दिया, just because you are not up to the mark. No. अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, again I'll relate it to Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, he knew that he wants to become an actor. मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखे हैं यहाँ पे, जो लोग आते हैं मुंबई में एक्टर बनने और बोलते हैं मैं खुद को 5 साल दूंगा, और अगर 5 साल में एक्टर नहीं बना तो आई लीव दिस इंडस्ट्री. नो, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका अल्टीमेट गोल है टू बिकम एन एक्टर, गिव योर 10,000% टू इट. चलो मैंने 10 ऑडिशंस, 50 ऑडिशंस, 150, 200 ऑडिशंस में मैं क्लियर नहीं हुआ. नो बिग डील. स्टे कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री. एडी बन जाओ, कास्टिंग करो, या फिर सिनेमेटोग्राफी करो, डीओपी करो. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. यू नेवर नो आपको कहाँ से ब्रेक मिल जाएगा. बट डोंट चेंज योर अल्टीमेट गोल कि मैं 5 साल दूंगा और फिर मैं वो नहीं करूंगा. Nawazuddin sir got a break at 40, at the age of 40, or and we all know he's an amazing actor. मतलब मैं तो बहुत छोटा इंसान हो जाता हूँ when it comes on talking about him. उनका काम इतना बोल देता है कि I don't think so I have to talk so much about him. तो वही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को 10,000% दिया. उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि अब मेरी एज हो गई है तो मैं ये काम नहीं करूंगा. अमिताभ बच्चन जी आज भी जब वो स्टेज पे आते हैं, आज भी जब वो कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, कभी भी लगता है कि यू आर सीइंग अ 75 प्लस मैन हु इज ऑन स्टेज, नमस्कार दे. ही हैज दैट ऑरा. यू क्यों? क्योंकि उनमें वो पैशन है टू गिव 10,000% टू एवरीथिंग यू डू. मैं नहीं बोलता हूँ कि दुनिया की सारी चीजें करो, 2 चीज करो, बट 2 चीज इतनी परफेक्ट करो कि यू गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट. जस्ट डिवोट योर टाइम टू इट. हम यही नहीं करते. हम 10 चीज करने के चक्कर में एक भी चीज अच्छे से नहीं कर पाते. सो आई टेल, कम चीजें करो, बट उसको, उस प्रोसेस को एंजॉय करो. और जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, आप उसमें डेफिनेटली 10,000% दे पाओगे. एज सिंपल एज दैट. फॉर एग्जाम्पल, अभी इस सेशन के दौरान इसमें ग्लिच आ गया, तो अगर मैं बोलूंगा शिट यार अभी ये इंटरनेट इज, इफ आई स्टार्ट क्रिपिंग और मैं बोलूंगा ये इंटरनेट ये है, इंटरनेट वो है, एंड ऑल दैट,
तो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करूंगा. आई एम एंजॉयिंग टू कम्युनिकेट. एंड अगर इस प्रोसेस को मैं एंजॉय नहीं करूंगा, डू यू थिंक कि मैं इतना इफेक्टिव एग्जांपल सोच के आपको बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा? आई डोंट नो. शायद मैं मेरी बात कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा व्हाट आई एम हियर फॉर. आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस. सो आई एम लाइक ओके. एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. और इसी के लिए आई हैव अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल. लाइफ में एडवेंचर क्यों होना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो हम घूमने जाते हैं तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एंड पीपल जस्ट गिव देयर लाइफ डेडिकेटेड टू पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ. भाई साहब, वो पैसे लेके कहाँ जाओगे? डेथ बेड पे वो महंगी हॉस्पिटल में पैसे इन्वेस्ट भी नहीं बोल सकते, वहां तो वेस्ट ही होने वाला है, बिकॉज वो लोग आपको रख देंगे वेंटिलेटर फॉर XYZ डेज एंड ऑल दैट. स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ. खुद पे स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ. एंड आई टेल यू, एडवेंचर से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. डेफिनेटली आई टेल यू व्हाट एडवेंचर्स हैव टॉट मी. मैंने रिसेंटली बंजी जंप किया था. तो उसमें ऑफ कोर्स एक सर्टेन हाइट से आपको जंप करना होता है जहां पे सिर्फ आपके पैर पे रस्सियां होती है. आई मीन सबको पता ही होगा. यू हैव टू ट्रस्ट दैट रोप फॉर योर लाइफ. कि अगर अगर ये रोप टूट गई, क्या हो गया? आई डोंट नो कि मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है. और वो तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाते हैं कि अगर मैं मर गया तो इट इज टोटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. जस्ट इमेजिन, अगर हम उस रस्सी पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो हम खुद पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? Why can't we trust the process? That small adventure taught me that how trusting your own self is so important. I go for trekking. तो जैसे मैंने कहा कि मैं रेगुलरली ट्रैकिंग पे जाता हूँ. हम रात के 2-3 बजे वी डू द फाइनल समिट व्हिच इज इन लाइक -14 डिग्री सेल्सियस. तब मुझे लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आई. कि वो लोग हम लोग को स्टेक्स या ऐसा कोई गेयर्स, ट्रैकिंग गेयर्स अलाउ नहीं करते. वो लोग बोलते भगवान ने आपको 2 पैर 2 हाथ इतना कुछ दिया है, व्हाई डू यू नीड ट्रैकिंग गेयर्स? दैट मेड मी सेल्फ डिपेंडेंट. व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर एनीथिंग? आई हैव ऑल द पोटेंशियल व्हाट आई कैन. लिटरली जब हम पानी नहीं होता है ना हमारे पास, तो हमें वही बर्फ खाना पड़ता है. एट दैट टाइम आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ फूड. आई रियलाइज एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू एडवेंचर. तो अगर जो लोग ये समझते हैं कि एडवेंचर घूमना इज ऑल टाइम पास, ट्रस्ट मी, लाइफ आपको इनडायरेक्टली कितना कुछ सिखा जाती है, आपको वो पता ही नहीं है. आज जब मैं देखता हूँ कि मैंने स्काई डाइविंग कर लिया है, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, अगर मैंने वो कर लिया है तो ये तो बहुत छोटी चीज है लाइफ में, ये तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा. It gives you a different sort of self confidence altogether. तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो तो लाइफ में एडवेंचर्स करो. डू as many adventures as you can in your life. It can be scuba diving, bungee jumping, and सबके लिए अलग अलग हो सकता है. Maybe आप कहीं पे गए हो तो उस वहां की लोकल स्कूल में जाके आप बच्चों को पढ़ा के आओ. That is also an adventure. या फिर आप लोकल किसी आप होटल में रुके हो, उस रात एक रात होटल में मत रुको, किसी और नॉर्मल विलेजर्स के घर पे जाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ खाना खाओ. मे बी यू विल लर्न 10,000 डिफरेंट थिंग्स वहां से. सो एडवेंचर इज फॉर लर्निंग. तो एडवेंचर्स करो तो आप सीखोगे कि व्हाट इज लाइफ. यू विल अंडरस्टैंड लाइफ मोर इजीली. मतलब जो भी समझना चाहते हैं ना व्हाट इज लाइफ, बिकॉज व्हेन आई से व्हाट इज लाइफ, सबके मुंह पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है. हमें नहीं पता व्हाट इज लाइफ. So adventures will take you through everything. मतलब जब हम बोलते थे, इस चीज को मैं बहुत एंशिएंट चीज से रिलेट करना चाहूंगा. हम जब बोलते ना हम 4 धाम की यात्रा पे गए, so now तो with all the helicopters and everything happening, 4 धाम की यात्रा बहुत इजी हो गई है. But back then इस चीज को क्यों स्टार्ट किया था, I'll tell you. This is my definition of understanding it. It can be subjective. तो इसमें कैसा था कि उस टाइम पे इतने ट्रैवलिंग के ऑप्शंस नहीं थे. यू डिडंट हैव ट्रेन्स एंड ऑल सच थिंग्स इन एंशिएंट इंडिया. तो उस टाइम पे लोग क्यों था, पीपल यूज्ड टू गो बाय वॉक, पीपल यूज्ड टू गो बाय ऑल दिस एनी mode of transport what they had, like bullock carts and everything. You cover almost every part of India. If I'm starting from the south, if I'm starting from Rameshwar to Kedarnath and everything, I meet so many different people from different cultures in that journey. यहाँ पे तो आप एक फ्लाइट पकड़े, आप 2 घंटे में पहुंच गए. बट उस टाइम पे ऐसा था कि आप उस टाइम पे इतने सारे स्टेट्स क्रॉस करके जाओगे तो आप कहीं पे रुकोगे. यू विल मीट द लोकल पीपल. सो यू विल मीट people from different cultures, you will meet people from different backgrounds. तो आप समझोगे what is life. और इसीलिए जो भी 4 धाम यात्रा करके आते हैं, हम उनके पैर क्यों पड़ते हैं? बिकॉज वो बहुत ज्यादा ज्ञानी बन के आए हैं, बिकॉज वो जगह जगह रुक के वो नॉलेज लेके आए हैं. दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू टच द फीट्स ऑफ पीपल जो 4 धाम यात्रा करके आए. आपको बहुत नॉलेज है, आप 4-5 अलग अलग स्टेट्स घूम के आए हो, तो आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है.
बहुत बार हम बोलते हैं ना, हमने तो आपसे ज्यादा दुनिया देखी है. So that actually that term or the phrase is related to this thing. I have seen people across the world. तो जैसे जैसे आप और दुनिया देखोगे, you will get a clarity what life is. And if you want to give 10,000%, since it is with self development, give time to your own self. And this is like, I think I should be begging this to people, and I should be telling that, it's my humble request कि खुद को time दो. you know I know with all this social media, Instagram and all such things, we are so, हम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है. I think that is the best thing I can ever tell. you know be with your own self. एंड देखो, हम इस सक्सेस की चमक में भी ना, हम कितने रिश्ते खो देते हैं हमें समझ भी नहीं आता है. एंड जब तक हम समझ जाते हैं, इट्स वेरी लेट. तो एटलीस्ट खुद को तो टाइम दो. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को टाइम दो, ऑफ कोर्स अपने फैमिली को टाइम दो, बट आप खुद को तो टाइम दो. if you you know as I told you, the only person who's going to be constant is you. Give time to yourself. मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे लोग बोलते हैं, very young kids, they like, I don't know what do I want to do in life. और मे बी कोई 25 26 27 साल के भी बच्चे होते हैं, वो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरा ये जॉब चला गया, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है. डूड, हाउ कैन यू नॉट नो तुम्हें लाइफ में क्या करना है. यू नो अगर आप खुद से 10 मिनट भी शांति से बैठोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड. एंड आई एम नॉट सेइंग उसके लिए आप कंपलसरी मेडिटेट करो. आई विल नेवर गिव दैट एडवाइस. ऑफ कोर्स मेडिटेशन करने से यू गेट दैट काम थिंग, और मे बी यू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ मच बेटर. बट आई अगेन, एज आई टोल्ड यू, मैं आपको कोई भी ऐसी प्रोसेस में नहीं डालना चाहता जो आप कंटिन्यू नहीं करेंगे. It can be playing with your pet for 10 minutes. It can be playing with a kid for 10 minutes. It can be going in a garden and taking a walk. It can be anything what you enjoy. Maybe, listening to music or dancing to a song. It can be anything. But give 10 minutes of your dedicated time to your own self. The day you start doing it, I'll tell you, एक बहुत बढ़िया सी ad आती है Uber की. Why XYZ stopped driving? Because she's giving herself her own time, where she's playing some mouth organ or something that sort. Which is a very wonderful ad. टाइम कितना इंपॉर्टेंट है खुद को देना. तो अगर आप खुद से कार ड्राइव करके जा रहे हो तो वो भी मत करो, उबर में बैठ के जाओ आराम से. गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ. बट हम क्या करते हैं, ओके लेट्स स्वाइप अप, लेट्स स्वाइप, ऑल वी डू इज वी जस्ट स्वाइप. इफ आपको कहीं भी खुद के साथ टाइम मिल सकता है, मे बी यू आर डूइंग अ लंच. एक दिन शायद ऑफिस में लंच आपके कलीग्स के साथ मत करो. सिट विथ योरसेल्फ, मे बी नॉट इवन लंच, टी ब्रेक ले लो यार खुद के साथ. डू एनीथिंग, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, टेक अ किट कैट ब्रेक, गिव इट टू योर ओन सेल्फ. व्हाई नॉट. तो बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब तक आप खुद के साथ नहीं रहोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट दूर दूर तक आप में नहीं आने वाला. और आई बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस, बिकॉज अगर आप बोलोगे मैं ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, ये वो करूंगा, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर. नो. जिस दिन आप खुद को प्यार करोगे, खुद को टाइम दोगे, तभी ही चीजें बेटर होगी. ऐसे. सो और एंड वो प्रोग्रेस भी होगा. इट्स नॉट ओनली यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज द सीक्रेट या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देख लेते हैं एंड दे फील लाइक, ओ माय गॉड, आज तो अभी कर लेंगे हम दुनिया मुट्ठी में, नाउ वी आर द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स. भाई साहब, रियलिटी बहुत अलग होती है. ओके, सी, having an optimistic approach is very important. Believing in law of attraction is very important, but being practical is also very important. अगर आप मारुति 800 ओन करते हो तो आप BMW कल के कल नहीं ले सकते हो. ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि हैव अ गोल ऑफ BMW, बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ऐसे सोचो कि कल के कल BMW आपके घर के बाहर आने वाली है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू हैव स्मॉल गोल्स टू रीच टू द मेन गोल. हम क्या करते हैं, गोल सेटिंग इस चीज को समझ नहीं पाते. मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए. आवर गोल्स आर वेरी मटेरियलिस्टिक. कोई भी गोल इज नॉट फ्रॉम विद इन. वो जितने भी गोल्स है ना, हमारे सारे गोल्स मटेरियलिस्टिक गोल्स है. हमने लोगों को देखा है कि उसके पास BMW, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो मुझे भी यही चाहिए, यही मेरा गोल है. तो अगर आप खुद के साथ रहोगे ना, तो आपको समझेगा कि आपके रियल गोल्स क्या है, आप सच्ची में क्या चाहते हैं लाइफ से. तो फिर ये आपके जो सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स है ना, वो आधे तो हट जाएंगे वहीं पे. एंड आपकी गोल्स काफी बदल जाएंगे. एक टाइम पे मेरा भी ऐसा था कि आई वांट अ BMW, आई वांट दिस, आई वांट दैट. बट व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग विद माय सेल्फ, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों को एजुकेशन देना है. आई वांट टू टीच पीपल, आई वांट टू बी इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. मेरे गोल्स सारे चेंज हो गए. आई वांट टू हेल्प सो मेनी पीपल, आई वांट टू मोटिवेट पीपल. एंड आई डोंट नो, एंड ऑल दिस TEDx और मे बी डूइंग दिस सेमिनार, दिस जस्ट ये जस्ट होते गया. मैंने उसके लिए एफर्ट्स डाले, नहीं डाले, मैंने डाले भी है, तो भी आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन द डेस्टिनी के होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. एंड थिंग्स
just started happening to me. तो यही है कि अगर आप खुद को रियलाइज कर लोगे ना, तो आपकी गोल्स भी ना सारे कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे. मे बी विद दिस टुमारो आई रीच टू माई अल्टीमेट गोल ऑफ BMW एज वेल. ऐसे तो यू नेवर नो. तो अगर आप गोल सेट कर रहे हो तो आई विल टेल यू वन थिंग के बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट योर ओन सेल्फ इज, बिकॉज वहां पे भी सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत वाइटल रोल है कि आप कोई भी रैंडमली गोल सेट नहीं कर सकते. आई बी वेरी हैप्पी अगर आप एक BMW या फिर रोल्स रॉयस या ऐसा कोई गोल सेट करते हो. इवन इफ यू ओन अ रिक्शा टुडे, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन own a BMW tomorrow. But then it has to have steps, like, maybe I'll own a Honda City, then I'll own a Land Rover. There एक steps होते हैं, right? Baby steps. आप directly jump करके ऊपर तो नहीं पहुंच जाओगे. आपको तो इस दुनिया में आने के लिए भी 9 महीने लग गए, राइट? इतनी सिंपल सी तो बात है. अगर हमें 9 महीने पेट में रहना पड़ता है जो कम इनटू दिस वर्ल्ड, और मे बी आप छोटे बच्चे हो तो 2 साल की एज में आप 10th की एग्जाम नहीं दे सकते, यू हैव टू कम इन फर्स्ट सेकंड. अगर उसमें भी स्टेप्स है तो लाइफ में भी स्टेप्स है, राइट? सो दैट इज हाउ यू रीच. तो बी प्रैक्टिकल इनफ. छोटे छोटे गोल्स रखो, अल्टीमेट गोल बड़ा ही रखो डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ यू शुड हैव योर नियर बाय गोल कि मे बी 6 months में ये, आफ्टर 7 months ये, आफ्टर 10 months ये. So that is how you will get into the process. And people who want to lose weight, first of all, be comfortable in your own skin. Okay, don't go behind this fancy thing of losing weight. आप जो हो जैसे हो परफेक्ट हो, ठीक है. और अगर आपको खुद के लिए वेट लूज करना है, so don't keep a goal कि मेरी वेस्ट इज 48 और अब मैं कर लूंगा 28. भाई साहब थोड़ा प्रैक्टिकल रहो. पहले आप क्या करो, 48 है तो आप 46 की वेस्ट का गोल रखो, फिर 40 की वेस्ट का गोल रखो. धीरे धीरे टेक बेबी स्टेप्स. वरना आप क्या करोगे पता है, पहले ही दिन जिम जाओगे और इतनी एक्सरसाइज करके आओगे कि नेक्स्ट दिन जा ही नहीं पाओगे. या फिर पहले ही दिन पे 100 राउंड लगा लोगे बिल्डिंग में ऐसे फुल एंथुसियास्टिक होके, नाइकी शूज, दिस ब्रांड टी शर्ट, एंड आई एम गोना जॉग 100 राउंड्स. और दूसरे दिन कुछ नहीं भैया, हम थक गए, हम नहीं करेंगे अब. सो ऐसे मत करना. मे बी चलो हम चालू 1 राउंड से करेंगे, आज 1 राउंड मारा, कल 2 राउंड मारेंगे, फिर 3 राउंड मारेंगे. तो ये क्या, यू विल बी इन द प्रोसेस कंटिन्यूअसली. वरना आप उस प्रोसेस को बीच में ही छोड़ दोगे. और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी एक ऐसी प्रोसेस में जाए जिस प्रोसेस को आप बीच में छोड़ दें. अगर आप कोई भी चीज को चालू कर रहे हो, make sure you take it for as long as possible. Let that thing be your attitude. So never stop in between. That is what I say. कि अगर आपको किसी चीज में 10,000% देना है, तो अगर आप खुद को नहीं जानते तब तक आप उस प्रोसेस को नहीं जानते. So that is what it is. So basically, self-learning is all about self-learning. You need to learn about yourself, and only then you can go for the development segment, right? True. And here I'll attach my own small story to the entire thing what I have said. I had, as I mentioned earlier, I had dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, ADHD, so many problems. Okay. I was treated as an untouchable person. Just imagine 17 years of your life being treated as an untouchable person. And that is your growing age. So, my self-confidence was totally gone. I started questioning my existence, that dude, why am I even alive? What is this life meant for? उस टाइम पे अगर मैं गिव अप कर देता, उस टाइम पे अगर मैंने खुद पे भरोसा नहीं रखा होता, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट टू मी. शायद मैं जिंदा भी नहीं होता आपसे ये सब बात करने के लिए. एंड जस्ट इमेजिन एवरी डे योर my entire class is hitting me with a divider, throwing me in a gutter. I have gone through all these things, but I'm like, it's okay. Maybe there is a bigger reason to it. I just loved myself. But that's what I'm saying कि अगर मैंने उस टाइम पे खुद का साथ छोड़ दिया होता, तो शायद मैंने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया होता. मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया, मैंने खुद से प्यार किया. आजकल तो हेडफोन्स भी ऐसे आते हैं ना, नॉइज कैंसलेशन वाले. तो मैंने ऐसे इनविजिबल नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स खुद को पहना दिए. लेट द वर्ल्ड, ओके आई विल बी वेरी रूड हियर, लेट द वर्ल्ड बार्क बट आई लव माई सेल्फ. तो बस बात खत्म हो गई. एंड थिंग्स lived for me. And अगर मेरे साथ ये हो सकता है, तो ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी शुगर कोटेड लाइंस कि दुनिया बदल जाएगी. ट्रस्ट मी, दुनिया बदलेगी, और ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ. तो अपने नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स अपने साथ ही लेके घूमो, लोगों की बात मत सुनो. जो आपके दिल में आता है, अगर आप सही कर रहे हो तो वो ही करो. I believe सबको इतना judgment या इतना एक कहते हैं decision या calculation, whatever the right word is,
आता है या आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि True. जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली गलत क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। True. So that is what, no, if you don't be with your own self, you will never realize कि what is right for you and what is wrong for you. You know, मैं देखता हूँ कि आजकल के कितने सारे बच्चे हैं जिनके डिसीजंस, अरे तू ये कर रहा है तो चल मैं भी ये कर रहा हूँ. Because you don't know your own self. That person knows himself and he has made his decision for himself. We call it कि नहीं हम तो हमारे फ्रेंड के साथ हैं, हम ये कर लेते हैं, and then you regret it for next 10 years of your life. Why do that? You know, तो अगर आप खुद के साथ नहीं रहोगे और आप आपकी डिपेंडेंसी पूरे किसी एक इंसान पे डाल दोगे, इसलिए अगर ये पेरेंट्स, अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर ये कोई चीज पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज डोंट मेक योर किड्स, अगर आप ही आपके बच्चों को केपेबल या फिर इनकेपेबल बनाते हो, ऐसा मुझे लगता है, अगर वो कुछ कर रहा है और उसमें वो बेचारे के करने के पहले ही आप उसको 1000 बार टोक दोगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो वो खुद से क्या करेगा? एंड फिर आप 10 साल के बाद ऐसे मेरे जैसे पेरेंटिंग कोच के पास आके कंप्लेन करोगे, इसको कुछ पता ही नहीं है, ही डज नॉट नो एनीथिंग, वो अपने लाइफ डिसीजंस लेता ही नहीं है, क्योंकि जब वो ले रहा था आपने इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट बता दिया कि ही हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन यू, एंड आप बोलोगे हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट है ही नहीं, पूरी डिपेंडेंसी हम पे ही है. आप एक बाजू ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा डिपेंडेंट हो जाए, एक बाजू आप उसको खुद को यू आर स्पून फीडिंग हिम टिल द नेक्स्ट लेवल. तो ये हिपोक्रेसी है पेरेंट्स की, एंड फिर ये अल्टीमेटली आता है बच्चों पे, राइट? सो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं तो उनको लेने दीजिए. बी देयर, ऑलवेज बी देयर, बट सुनने के पहले उनको काट मत दीजिए. जस्ट सी टू इट, नो हाउ इट गोज. अगर आप लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट मैं लॉर्ड कृष्णा का एग्जांपल लेना चाहूंगा. जब वो मटकी तोड़ते थे तो पहले तो वो लोग नीचे किचन में ही रखते, जैसे कि हमारे बर्तन पड़े होते हैं ऐसे ही वो लोग नीचे रखते थे. बट क्योंकि कृष्णा मटकियां तोड़ने लगे, माखन चोरी करने लगे, तो सब लोग ने सोचा कि चलो हम इस चीज को ऊपर लटका देते हैं, छोटा बच्चा ऊपर तक नहीं पहुंचेगा. ठीक है, अगर कृष्णा की मम्मी उसको वही टाइम पे रोक देती थी, बेटा नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, ओके, तो क्या होता, वो शायद कर ही नहीं पाता. और कृष्णा ने उसमें से क्या सीखा? टीम वर्क. मैं टीम को बना के चलूं और हम ऐसे चढ़ेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. उन्होंने अगर टीम वर्क सीखा, तो आपका बच्चा भी जब कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो वो डेफिनेटली सीख रहा है. तो वो बोलते ना, हम तो एड्स भी देखते हैं कि बच्चों के ग्रोथ हेयर में दूध अकेला क्यों, बॉर्नवीटा डालिए. सो सी, दैट इज हिज ग्रोथ हेयर. ये तो एड्स भी हम लोग को बोलते कि ये बच्चों का ग्रोथ हेयर है. तो डोंट मेक हिम डिपेंडेंट इन दैट ग्रोथ हेयर. अगर आप उसको यू आर मेकिंग योर सन और डॉटर हैंडीकैप उसी स्टेज में. मैं तो आई विल से इट वेरी ब्लंटली, अगर आप ये चीजें कर रहे हो कि आप आपके बच्चों को तो कॉन्स्टेंटली यू आर हैमरिंग देम, तो ये चीज बहुत गलत कर रहे हो. और आई एम नॉट सेइंग दारू पीना अच्छी बात है, बुरी बात है. आई एम नॉट सेइंग एनी जजमेंट, बट आई हैव सीन किड्स डूइंग ड्रग्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज. 10th 11th के बच्चे होते हैं एंड दे गेट इनटू ऑल सच थिंग्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आपके बच्चे को खुद के साथ रहने नहीं दिया. बिकॉज सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, आई टेल दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने आपके बच्चे को खुद से डेवलप होने का टाइम नहीं दिया. सो नाउ व्हाट ही थिंक्स राइट ही विल डू. वो आउटर वर्ल्ड में जाके वो कुछ भी करेगा. इट इज टोटली ऑन दैट पर्सन, बिकॉज उसको एक ऐसी लिबर्टी मिल गई है जहां पे वो खुद के डिसीजन ले सकता है अभी. ही फील्स लाइक, बहुत सिंपल सी बात है कि कभी ना कभी कुकर भी तो घर पे फटता है ना ज्यादा प्रेशर की वजह से. तो आप अपने बच्चे पे इतना प्रेशर डाल दिया है कि एट अ वेरी अर्ली एज ओनली ही वो आपसे छुटकारा लेना चाहता है. तो थोड़े बहुत डिसीजंस उन पे भी रखने बहुत जरूरी है, तो वो खुद से डेवलप करेंगे. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, आई थिंक थोड़ा बहुत आई एम रिलेटिंग इट टू पेरेंटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप यंगस्टर्स भी हो और आप देख रहे हो तो ये टिप ले लो, पेरेंटिंग में बहुत काम आएगी, बिकॉज इट्स लाइक द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग एवर. ऐसे, and if you guys are in relationship, Valentine's Day is around the corner, तो definitely आप क्यों आपके पार्टनर से हैप्पी नहीं हो, पता? क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता आपको खुद क्या चाहिए. बिकॉज यू डोंट नो योर ओन सेल्फ, इसलिए आपकी पूरी एक्सपेक्टेशन सामने वाले इंसान से है. कि सामने वाला इंसान ये, सामने वाला इंसान ये, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट सामने वाला इंसान, बिकॉज यू डोंट नो योर ओन सेल्फ. आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान ही आपको जाने. क्यों? बिकॉज बचपन से वही हुआ है आपके साथ. स्कूल में डिसीजंस लेने नहीं मिले, घर पे डिसीजंस लेने नहीं मिले. So now we are so dependent that you don't know what is right for you and what is wrong for you. So that is why I see relationships going for a toss, even with the youth, even with happily married 15-year, 20-year couple. I don't know what is wrong with them, but yeah, this is what, because they don't know their own self. Because बहुत बार इसमें relationship में भी ऐसी चीजें होती है कि for example I am success oriented and
my partner is love oriented. So what she will need from me is, you sit with me for like 10 minutes, you give me that time, okay, but and I'm a person who's success oriented. And even if I think नहीं वो उसकी पर्सनालिटी इज लव पर्सनालिटी, तो मैं उसके साथ 10 मिनट बैठता हूँ, बट अगर वो 10 मिनट में ऐसी बातें करेगी, वो सामने वाली शर्मा जी की इसने है ना ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो I'm like इसमें मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ सक्सेस की बात करो तो मुझे सी मेनी टाइम्स यू आर मेंटली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, बहुत बार ये लोग जो ये करते हैं ना डबल डेटिंग की जो कंसेप्ट आई है, इट्स नॉट मोर फॉर द फिजिकल रिलेशंस, इट इज मोर फॉर मेंटल रिलेशंस, आप मेंटली कहाँ पे फिट होते हो उस इंसान के साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि तो अपने पार्टनर को भी समझो और खुद को भी समझो। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन रिलेशनशिप में गए ना, उस दिन ये लिस्ट दे दो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो ये आपका तो सामने वाला इंसान भी आपको जान जाएगा। ठीक है, चलो ये गुस्सा है तो मे बी ही नीड्स हिज पर्सनल स्पेस फॉर लाइक 15 मिनट्स, देन आई विल गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। मे बी ये ऐसा है तो ये इसका सॉल्यूशन ऐसा है। तो वो कब होगा? आप आपके पार्टनर और आपके बीच में क्लैरिटी कब ला पाओगे? जब आप खुद को ही अच्छे से जानते रहोगे। So as I was saying, if I am a growth oriented person and if my wife is or my better half is love oriented person, तो मैं जानता हूँ कि उसको मुझे टाइम देना इज इम्पोर्टेंट। नाउ आई कांट पुट हर इन अ प्रोसेस कि नहीं तू भी ग्रोथ कर, तू भी ग्रोथ कर, बिकॉज शी इज नॉट दैट, उसका वो पर्सनालिटी है ही नहीं। सो व्हाई शुड आई बी पुशिंग फॉर दैट थिंग्स? So maybe I have to take myself one step down. It's okay. You are a love oriented person. I'll sit for you with 10 minutes. Talk. She is not expecting a hell lot of things out of you. All she's expecting 10 minutes of your valuable time. And you just be there. Just be there for that person. Same do, अगर मैं भी ऐसे expect करूंगा कि maybe if I am going for a stage show, just be there backstage. Harsh, you'll do it wonderful. I just want that 2 words from you. You'll be amazing. And I'm done. I'm pretty much sorted. तो ये कब होगा? जब आप खुद को जानेंगे और आप आपके पार्टनर्स को आपके स्ट्रेंथ्स बोलेंगे, मुझे ये सब अच्छा लगता है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो ये जितने भी यूथ की भी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अगर आप खुद को जानने लगोगे तो वो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएगी। So I'm just your my point of taking up relationships, taking up parenting thing is very simple. सबके लिए ना खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है at end of the day. तो that is it. That is how it works. Self recognition is the only core mantra for self development. I think this is what we can get it as a gist of this entire session. Wonderful. अभी हमने बहुत सारी आपने बातें बताई, अभी हमने parenting cover किया, and we spoke about relationships. But when students are watching you right now, and especially when you pick up that topic of, that addiction, and I must mention that it's not a good thing. So जब आप खुद को जानते हो, खुद के लिए कुछ भी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इन चीजों से दूर रहो. Maybe your parents are angry at you for anything, for 100 things. But this one thing, if you do, you're not just making them happy, you're making your own life. So never get into the addiction of anything. And that's getting, being on anyone, putting yourself on anyone, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कुछ भी. When you know your limits, when you know your persona, when you know your level and you know your goals, your short goals and your, of course, long goals, then वो प्रेशर आप पे काम ही नहीं करेगा. जैसे उन्होंने बोला हर्ष ने कि वो you wear that invisible headphones सुनने वाले, तो use those always and make sure you do not go on a wrong path, because ultimately वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा. Yeah, and since I have spoke against parents, I also speak with parents. अगर ये बच्चे लोग बोलते हैं ना क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, नो, इट्स अ बिग नो नो. ये तुमने खुद से किया है बिकॉज तुम चाहते थे वो करना. सो डोंट ब्लेम इट ऑन पेरेंट्स एट एंड ऑफ द डे. That was their mistake and this is your mistake now. What you are being sensible person, you are doing this. So so that is your mistake, and that is that thing that you can never blame on parents. See, they were ignorant of it. They just wished better for you. तो वो वहां पे गलत नहीं है क्योंकि उनको उस तरीका नहीं पता था. बट आप तो समझ सकते हो, आप सेंसिबल हो ना. अगर आपको लगता है कि आप आपकी लाइफ में ये सारे डिसीजंस ले सकते हो, तो आप इतना भी तो सोच सकते हो कि उन्होंने उस चीज को क्यों किया होगा, राइट?
So you can never blame कि मैं मेरे parents की वजह से ये सब कर रहा हूँ. So dare you do this and say कि मैं आपकी वजह से ये सब गलत करने में आया. So never do that, because just imagine, अगर बोलते हो कि मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पाते, I'll tell you, जब आप बोल नहीं पाते थे ना, आप जिस वे में रोते थे ना, उस वे में माँ बाप को पता चल जाता था कि इसको भूख लगी है, इसको पेट दर्द हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, यू नो. You're getting emotional. अच्छा, तो मैं इसको कवर करती हूँ थोड़ा सा, सो यू टेक योर स्पेस. जब आई थिंक हर्ष बोलना चाह रहे हैं कि जब आप नहीं बोल पाते थे उस टाइम पे भी आपके पेरेंट्स आपको समझते थे. शायद उनको वो तरीका नहीं आता, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. सब 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 सीख के नहीं आते, हम लोग सब यही सीखते हैं. जैसे आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, वैसे ही उन्होंने भी कुछ चीजें सीखी. जैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, अगर एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बोलता है कि अल्फाबेट्स आर इजी, बट आस्क द kid studying in first standard that how difficult it is. So it's like when you have learned it, you can say that yes, I've learned it. But if somebody did not learn it, did not get the privilege of learning that specific thing, that doesn't mean they are wrong. True. So never blame it on anyone, because again this is also related with self. आप जो भी करते हो वो तुम खुद के वजह से ही करते हो. चलो वो आपके पेरेंट्स की गलती थी, या चलो वो आपकी गलती थी, बट at end of the day you have to learn it, no, कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने ये गलत किया, and you yourself know what is right and what is wrong for you the day you know your own self. And the day you love your own self, if you love your own self, and why I'm saying ये गलत नहीं है, जब मैंने बोला कि drinking or smoking, I don't know it is right or wrong, because मैं मेरे कोई डिसीजंस आप पे इम्पोज नहीं कर सकता, बिकॉज आप सब इतने मैच्योर हो कि खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप खुद डिसीजंस ले सकते हो. अगर आप ये सारे डिसीजंस ले सकते हो तो ये भी ले सकते हो. एंड आई थिंक इफ यू लव योर ओन सेल्फ, यू विल नॉट, मतलब हम खुद का घर तो नहीं तोड़ेंगे ना खुद से, ऐसे हम खुद को तो नहीं तोड़ेंगे ना खुद से. तो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है लाइफ में. एंड इफ यू लव योरसेल्फ, आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट end up doing such things so aggressively that you get into addiction of it. So yeah. True. Wonderful. Very well said, Harsh. And I am sure जो students एक motivation सोच के आए थे इस session पे, they actually got motivated. I hope I could convey that to them. Yes, pretty much. And it's very, very, you got the crystal clear way that yes, you have to take responsibility of your actions no matter what age you are. Even when you make a mistake, admit that it was a mistake and correct it. उसको hide करने का फायदा नहीं होता. It takes you on a wrong path. वो एक phrase भी है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. True. एंड आई पर्सनली बिलीव कि झूठ का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है कि उसको याद रखना पड़ता है और वो याद रहता नहीं है. कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे. तो इट्स बेटर फॉलो द सत्य का रास्ता एंड लर्न ऑल द पीपल. हमें तो यार पढ़ाई भी याद नहीं रहती थी, ये झूठ कैसे याद रखेंगे, वही मान के चलो. हम तो जो आज पढ़ते थे वो आज शाम को ही भूल जाते थे. तो ये मान के चलो अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़े ही जाने वाले हो, नो मैटर व्हाट. Absolutely. तलाश मूवी में एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग है which is by आमिर खान and करीना कपूर, जिसमें करीना कपूर is like a ghost and she says a very wonderful dialogue. कोई चीज कब तक पानी में रहेगी साहब, कभी ना कभी तो बाहर आएगी. So it's very simple कि nothing is going to be be under the water. कभी ना कभी तो वो ऊपर आने ही वाला है वो चीज. Absolutely. And गलती करके हम सब सीखते हैं सिमिलर वे. आई विश आप लोग दूसरों की गलतियों से सीखो and grow and learn from the wisdom of others. And that's the core mantra of Vidyadaan, that we want you to learn from the wisdom of others, from the information, knowledge that they have gained from their practical experience. So you don't have to repeat the mistakes to learn about it. True. With this, I'd like to say thank you, Harsh, Doshi, for giving us your precious time and giving us your. Thank you so much for having me aboard and having faith in me that I might be able to motivate people. And अगर लोगों ने इस session से कुछ भी सीखा हो, the first thing you do after this session is please go and kiss your own self and say I love myself the way I am. If you do that, I think my work is pretty much done then. Absolutely.
And thank you so much, lovely audience. I know it's Friday evening, and then you guys have a good weekend. We have a session coming up with Mr. Dane Walker on Friday, 20th of February. Yes, Dane Walker is from Australia, and he'll be with us for giving you an ultimate guide to design, to branding, marketing, and design. Yes, Feb 20th, that is next Saturday at 11:30 a.m. in the morning. So till then, you can take rest. We'll keep updating you on our website. You can subscribe to our channel so you get all the updates, all the informations all together. With this, take care. See you. Have a good evening. Bye bye.